A very good morning to all of you. Hello, students. How are you? Now, this is the fourth lecture and fourth session I am going to take in this first chapter, that is the chemical reaction and equation. So, today we are going to discuss the last topic about the type of reaction. We have already discussed about the type of reaction in two sessions, that is in second session we have completed our combination reaction and decomposition reaction, and in the third session we have completed displacement reaction, double displacement reaction, and along with these main type of reactions we have studied about the exothermic reaction, endothermic reaction, and precipitation reaction, photo decomposition reaction, and electrolysis of water. That was also very important activity we have discussed or studied about it. So now the today's session is going to be very important, because from this part question is 100% asked in the board examination. So my dear students, focus upon the topic and try to learn it, try to understand the concepts whatsoever will be taught today to all of you. So what are the objectives for today's session? Just see, the objectives are oxidation and reduction reaction, identification of oxidizing and reducing agent, examples of redox reaction, and we will see there how oxidation and reduction reaction taking together, that is called redox reaction. And at the end, the oxidation process, how does it affects in our day to day life. There are two effects discussed as per your syllabus: corrosion and rancidity. So my dear students, these are the objectives which will be completed today. So we are moving for today's session. Are you ready? Get ready with your notebooks. Try to listen me carefully, make your proper note, and after completion, whatsoever the task assigned to you, I hope that all of you will do it. So now just see, we are going to do an activity, and whether I can say that we are not going to do, but we will try to understand that activity. So this is a tripod stand. You all of have seen it in your laboratories. So ये जो ट्राईपॉड स्टैंड है, इस एक्टिविटी में हम क्या करने वाले ज़रा देखो। ये हमने वायर गर्ज ले लिया और उसके ऊपर एक चाइना डिश ले लिया, उसमें आप एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस देख रहे हो बच्चों। नाउ आप बताओ, आप द ब्राउन कलर ऑफ सब्सटेंस, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ कॉपर। सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग, नीचे से हमने बर्नर लिया, अब बर्नर को हीट करना है। सो जो डिफरेंट हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, जो डिफरेंट हमने इस एक्टिविटी के लिए लेबोरेटरीज इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, वो कौन कौन से थे? चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, बर्नर, ट्राईपॉड स्टैंड, वायर गेज, एंड इट इज़ द ट्राईपॉड स्टैंड। ये हमारा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोगों ने यूज़ किया, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स है जिसका हमने यूज़ किया है। सो नाउ माय डियर चिल्ड्रेन, आप देखो इस एक्टिविटी में बहुत क्लियर है कि आपने चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है जो ब्राउन कलर का है। अब आप उसको हीट करोगे। एक्चुअली व्हेन यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर लेबोरेटरी, यू कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो। यहाँ पर अब आपको उस रिजल्ट को बताने के लिए मैं आपको बता दूँ, आप इसको करोगे भी, कि जब आप कॉपर पाउडर को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो धीरे धीरे वो ब्लैक सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कि जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा? आपका कॉपर ऑक्साइड होगा। ये जो बच्चों पॉइंट्स आता है कि कलर रिलेटेड कंपाउंड्स, किस कंपाउंड का क्या कलर है, कैसे वो कलर चेंज होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू लर्न। तो आपका इस एक्टिविटी का मेन फोकस क्या है कि आपने देखा कि कॉपर पाउडर लेयर विच वाज ब्राउन इन कलर, नाउ व्हेन इट वाज हीटेड, व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू द ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट हैपेंस हियर, ऑक्सीजन इज एडेड टू copper,
पहले तो सिर्फ आपने कॉपर का पाउडर लिया था, अब उसमें ऑक्सीजन एडेड हो गया और बन गया कॉपर ऑक्साइड. सो नाउ what is the reaction taking place here? Can you write the reaction? बहुत सारे बच्चों ने उस रिएक्शन को लिख सकते हो, और लिखने के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप लिख लोगे. सो वंस राइट इन योर एनसीआर, इन योर नोटबुक, और द रिएक्शन इज दिस वन. कॉपर Cu+O2 हीट किया, CuO कॉपर ऑक्साइड बना. बच्चों यहाँ पर हमने 2 ऑलरेडी लिख दिया है. एक्चुअली दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. आई हैव ऑलरेडी हियर रिटन द बैलेंस्ड रिएक्शन. लेकिन जब आप इसको लिखोगे, पहली बार आप प्रैक्टिस करोगे, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस: Cu+O2 CuO copper oxide. Now there is need to balance. Oxygen is 2 here, oxygen is 1, so you will multiply here by 2. Now the copper becomes 2, then it should be multiplied by 2. Now this is the balanced reaction. तो बच्चों पहले आपको unbalanced reaction लिखना पड़ेगा, then you have to balance it. Practice it regularly. So this is the reaction taking place in that particular activity. So व्हाट इज़ आवर एम, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना. तो बच्चों देखो, एक चीज़ जो हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड द अदर वर्ड इज रिडक्शन. अब यहाँ से अगर आप बच्चों इसमें से वर्ड ले लो, यहाँ से ले लो रिड और यहाँ से ले लो OX, दोनों को मिला दो. पहले लिखो RED, रेड, OX, redox. It means reaction where oxidation and reduction taking place together is called redox reaction in a single word, and both the process take place simultaneously. ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं बच्चों एक साथ होते हैं. तो इस रिएक्शन में अब अपने को देखना है कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हम डिफाइन पहले कर लें. देन वी विल ट्राई टू टेक various examples. So now first of all, those two terms, that is the oxidation and reduction, should be understood. So what is oxidation reduction? Classical concept. Classical का मतलब बच्चों आज हमारे पास जो concept है, that is the modern concept. But as per your NCERT book, as per your syllabus, we have to learn about the classical concept. In class 11th, you will learn about the modern concept, which depends upon the loss and gain of electrons, increase and decrease in oxidation number. That is not required here to learn, but I will explain it in a nutshell. Now, oxidation is a reaction in which ऑक्सीजन इज एडेड. आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइन द टर्म. यहाँ पर किसका एडिशन होना है? किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में बच्चों ऑक्सीजन का ऐड होना है. हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस. अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस आपका जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा. तो एडिशन किसका होता है? जैसे वर्ड है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो रिमूव कौन होगा? हाइड्रोजन का रिमूवल होगा. यही दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसके एडिशन एंड रिमूवल के बेसिस पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन बताना है. सो नाउ एडिशन, एक थर्ड आपको यहाँ पे पार्ट में ऐड कर दे रहा हूँ. जो थर्ड है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस. किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जब आप एडिशन करते हो तो दैट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसके अलावा अगर आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बच्चों जाओगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वो भी डेफिनेशन. बट वी हैव टू फोकस अपॉन द टॉपिक एज पर आवर सिलेबस. जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये 2 पॉइंट ही आपको पढ़ने. ओके, सो नाउ रिडक्शन क्या है? जस्ट इसका रिवर्स. यहाँ पर आपने किसका एडिशन किया है? ऑक्सीजन का. रिमूवल किसका किया है? हाइड्रोजन का. तो जस्ट उल्टा कर दो. यहाँ रिडक्शन में क्या हो? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस में क्या आप ऐड करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे. और वहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है। जैसे मेटल ले लो, Fe+2 Fe+3, दीज आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे Cl-, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद से चार्ज आता है। तो आपको तो स्पेशली फोकस करना है शुरू के इन दो प्रोसेस पर। हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ओनली। सो नाउ इन दिस एग्जांपल सी, कॉपर ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें हम लोग अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं कैसे होता है ना। व्हाट इज द रिएक्शन, दिस इज द आवर रिएक्शन। अब ये रिएक्शन बच्चों देखो, जो ऊपर आपने एक्टिविटी कंडक्ट किया, उस एक्टिविटी में क्या हुआ था बच्चों, एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा दूं। उस एक्टिविटी में आपने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन से कॉपर ऑक्साइड बना। ये आपका था ब्राउन कलर, ब्राउन इन कलर, एंड दिस वाज ब्लैक इन कलर, यानी जो कॉपर ऑक्साइड बना वो ब्लैक कलर का था। अब जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो, इस कॉपर ऑक्साइड में जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक, इस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को हम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से पास करते हैं। तो आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से, अब जब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बच्चों देखना होता है तो ओनली आप रिएक्टेंट को देखो कि व्हाट आर चेंजेस गोइंग अंडर द रिएक्टेंट्स। पहला रिएक्टेंट आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड। राइट साइड के प्रोडक्ट में आप क्या देख रहे हो कि वहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स देयर इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। हाइड्रोजन के साथ आपको देखो क्या चेंजेस आ रहा है, हाइड्रोजन इज रिएक्टेंट इन रिएक्टेंट पार्ट, इधर H2O बन गया, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एरो मार्क आप देख रहे हो, ये जो दिस चेंज इज ऑक्सीडेशन। और ये एरो मार्क जो आप देख रहे हो, जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, एंड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इट, इट कन्वर्ट्स इनटू द अगेन द सेम ब्राउन कलर सब्सटेंसेस। ये जो आपका चेंज है, जहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज रिडक्शन। तो इस तरीके से आपको एरो मार्क करके बताना रहता है कि एक्चुअल में कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर इस रिएक्शन में बच्चों एक चीज़ हम अगर आपसे क्लियर करो तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जस्ट आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लेन। CuO प्लस H2 Cu plus H2O. Now see here, this part is removal of oxygen, and removal of oxygen means reduction. In this part, addition of oxygen, oxidation. Now, 2 or 3 terms are very important. I am just writing substance oxidized, substance reduced, oxidizing agent, रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर। तो बच्चों ये 4 टर्म्स पूछे जाते हैं आपसे कि आप उस रिएक्शन, पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो, एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड, which is oxidizing agent, which is reducing agent. My dear students, please keep in your mind all these substances about which it was asked. ये सारे के सारे आपको ओनली रिएक्टेंट साइड में देखने, ओनली रिएक्टेंट्स ही होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोडक्ट साइड से देखना शुरू करते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड ये हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन। किसका रिडक्शन हुआ, किससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकला, कॉपर ऑक्साइड से, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर ऑक्साइड।
अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसके कारण हुआ, उसके लिए एजेंट कौन था, तो कॉपर ऑक्साइड। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है एक्चुअल में वही क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो सब्सटेंस आपको ऑक्सीडाइज्ड होता है इसका मतलब है उसने दूसरे का रिडक्शन करवाया है, तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो याद रखिएगा शुरू के दो आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा ऑब्वियसली वही क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन ऑल्सो। सो नाउ दिस इज क्लियर, आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमें कैसे दिखानी है रिएक्शन। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, नाउ सी हियर what is happening. Another example is taken here. Fe2O3 plus 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड Fe। अब बच्चों देखो Fe2O3 में यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन ऐड होकर दो ऑक्सीजन हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आप मुझे यहाँ बताओ व्हाट विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। रिड्यूस्ड कौन हुआ, Fe2O3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, Fe2O3। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इज इट क्लियर। तो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि रिड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है ना, उसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन कराएगा, वहाँ से ऑक्सीजन को निकालवाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ही, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe2O3। अगर ये नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीजन रिमूव करता, नहीं करता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन दूसरे सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल करा रहा है, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसका वो रिडक्शन करा रहा है। ओके, नाउ just see the difference between oxidation and reduction in a tabular form. Very simple definitions are given. Actually modern concept में हमने यहाँ definition दे दिया, oxidation is the loss of electrons or hydrogen atom or gain of oxygen atom. Actually this term loss of electrons are not as per your syllabus. Reduction is the gain of electron और hydrogen atoms और ऑक्सीजन एटम, जो हमने पहले कर लिया था। विथ रिस्पेक्ट टू ए क्यों लिखा गया यहाँ पर, आप एग्जांपल देख लो। यहाँ ए है, ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, यहाँ ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे लॉस। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ हियर सी AH, ए के साथ हाइड्रोजन आइटम है। नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो आपको ए बन गया, यहाँ पे BH बन गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बी के साथ ऑक्सीजन है, ए के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जस्ट रिवर्स यहाँ देख लो बच्चों, चेक करो, ABH। अब ए के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, AH बनाता है, दिस इज रिडक्शन। यहाँ ए के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, इट गोज टू ऐड विथ बी, तो यहाँ क्या हो गया, आपको रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में बात करो, AO प्लस बी, ए प्लस BO, तो ऑब्वियसली बच्चों ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो रहा है, चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हैं कि ये हो रहा है रिड्यूस्ड। अब हमें बताओ, जो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर। और ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, आगे बात समझ में ना। अब इसी को किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में हम चेक कर सकते हैं। सो नाउ
दिस रिएक्शन इज नॉट क्लियर। मैं इसको एक बार फिर से आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, जो रिएक्शन वहाँ लिखा गया है, ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन या कोक, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. Now in this reaction, first of all we have to identify where the oxidation is taking place. Obviously just see the reactant side. बच्चों reactant को देखो, जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ रिमूवल आउट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम. ये क्या हो गया आपको, रिडक्शन. और कार्बन के साथ व्हाट इज हैपनिंग हियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो इट इज ऑक्सीडेशन. क्लियर. अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि ऑक्सीडाइज्ड क्या हो, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ. ऑब्वियसली यू विल सी से सी. तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कार्बन. तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट विल बी कार्बन. रिड्यूस्ड कौन हुआ, ZnO. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ZnO. तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. इट के लिए सबको समझ में आ गया. ओके, सो नाउ you can understood the concept. Reducing agent, suppose A is the reducing agent, loss of electron. अगर ये reducing agent है तो जो reducing agent होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, रिड्यूस्ड होता है. इतना आपको सिर्फ समझना है. ओके, नाउ another example is here. As per your NCERT book, this example is taken. MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2 plus Cl2. बच्चों अब आपसे इस इक्वेशन में पूछा जाता है, जनरली दिस इक्वेशन इज गिवन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, विच इज रिड्यूस्ड, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो जब भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है आपको एरो मार्क से शो करना पड़ता है कि वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. तो अब यहाँ बच्चों आप देखो MnO2 के साथ ऑक्सीजन है और इधर MnCl2 बन रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है. HCl के पास हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ Cl2 के पास हाइड्रोजन नहीं है. सो व्हाट इज हैपनिंग, HCl to Cl, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ये प्रोसेस क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन कहोगे. और यहाँ क्या हो रहा है, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जेट क्लियर. तो ऐसे पहले एरो बताओ. अब बच्चों बताओ यहाँ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, HCl. ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट इज HCl. और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, MnO2. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, MnO2. रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, HCl4. लिखने की जरूरत नहीं है. तो डेफिनेशन क्या है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, और वो क्या होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा. और इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज इट क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आ गया. सो आई होप अप टू नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको समझ में आ गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड. आई थिंक दिस all points are clear to all of you. Now moving to the further last topic, that is effects of oxidation reactions in our everyday life. There are two effects we have to study. that first is corrosion, second one is rancidity. बच्चों ये दो टर्म हैं जिसके बारे में स्मॉल शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आता है. जस्ट ऑब्जर्व, यहाँ क्या आप देख रहे हो कि एक लोहे की पाइप है और उसके ऊपर ये जो पार्ट है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस सरफेस को स्पेशली देखो अब क्या हो रहा है, इसका डिटोरिएशन हो चुका है. जो लोहे आयरन का सरफेस था इट हैज़ गॉट डिटोरिएटेड. यहाँ देखो इस कलर को आप ऑब्जर्व करो, इस कलर को ऑब्जर्व करो. इट मीन्स सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट रिएक्ट विद द इन्वायरमेंटल सिचुएशंस. इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स है, मॉइस्चर है, एयर है, उससे वो रिएक्ट करता है एंड इट सरफेस गेट डिटोरिएटेड. उसका सरफेस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड corrosion. So how corrosion is defined,
It is defined as deterioration of material by chemical interaction with their environment. इन्वायरमेंट में जब कोई सब्सटेंस ऐसे ओपनली होगा, उसका सरफेस रिएक्ट करेगा विद द डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, एंड दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस प्रोसेस द सरफेस गेट डिटोरिएटेड, एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन. कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं कोरोजन के. पहला एग्जांपल आपको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप सब जानते हो, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने देखा हो कि आयरन इज व्हेन इट इज केप्ट इन एयर एंड मॉइस्चर, इट्स सरफेस एक्वायर्स अ ब्राउन फैल्की. उसके सरफेस पे देखो ब्राउन कलर का आ जाता है ना, तो वो क्या है, रस्ट है, दैट इज कॉल्ड रस्ट. तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है वो. तो अब एक दूसरा एग्जांपल लो, ये आप देखो ब्राउन कलर का, आपको ये ब्राउन कलर दिख रहा है, उसके ऊपर ग्रीनिश कोटिंग है, ये ग्रीन कोट है. नाउ दिस ग्रीन कोट, ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस ऑब्वियसली कॉपर होगा, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग कैसे बन जाती है, तो ब्राउन copper acquires green coating due to formation of copper carbonate in moist air. जिट क्लियर, सबको समझ में आ गया. थर्ड ले लो, सिल्वर टार्निसेस एंड हैव ब्लैक कोटिंग. सिल्वर के ऊपर धीरे धीरे आपने देखा ब्लैक कोटिंग हो जाता है, तो पॉलिश सिल्वर है, इसकी अपनी शाइनिंग होती है, धीरे धीरे देखो इसके ऊपर ये ब्लैक कोटिंग आ गई. टार्निस्ड सिल्वर है, यहाँ सिल्वर सल्फाइड बनता है जो एक ब्लैक कोटिंग होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो वेरियस मेटल्स हैं, व्हेन दे आर exposed to air, moisture or environmental situation, just their surface get deteriorated when they react with the chemicals present in environment or moisture or with air, and then the surfaces got deteriorated, and this process is called corrosion. And rusting is one of the most important corrosion of iron substance है, जिसका हम लोग इफेक्ट अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. आपको corrosion के बारे में डिटेल में थर्ड चैप्टर में भी पढ़ना है. दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ. सेकेंड इफेक्ट क्या है बच्चों, रैंसिडिटी. एक्चुअल में आप ये सब कुछ मटेरियल्स देखिए, खाने के मटेरियल्स है, इस फूड आइटम को ज़रा ऑब्जर्व करो. एक्चुअली ऑब्जर्व करने का मेन है कि उसके कलर को ऑब्जर्व करिए. अगर स्पेशली आपने देखा होगा जो फूड आइटम्स ऑयली होते हैं, जिसमें फैट सब्सटेंस होता है, व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, इट इज़ केप्ट फॉर 2 or 3 days, आफ्टर दैट आपने उसमें ऑर्डर चेंज देखा होगा, कलर चेंज देखा होगा, उसमें से ये जो चेंजेस उसके अंदर आते हैं, इसका मतलब है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. द चेंज इन फ्लेवर एंड ऑर्डर ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन. वो क्या होता है, सब्सटेंस जब आपने रख दिया है, उसको छोड़ दिया है, उसमें ऑयल और फैट है, द ऑयल एंड फैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एंड ड्यू टू दैट द ऑर्डर एंड फ्लेवर गेट्स चेंज इन द फूड आइटम, एंड दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी. और फूड को बोलते हैं कि दिस फूड इज रैंसिड फूड. और कैसे इसको रोक सकते हैं, इस रैंसिडिटी को रोकने के लिए, फूड के ऑर्डर ऑफ फ्लेवर को रोकने के लिए, जिसमें स्पेशली ऑयल होता है, वी कैन यूज़ वेरियस मेथड. एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करो. एंटीऑक्सीडेंट के रूप में दो केमिकल्स, BH ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन का हम यूज कर सकते हैं. वी कैन कीप द फूड आइटम इन एयर टाइट कंटेनर. जैसे चिप्स को जनरली आपने देखा होगा, चिप्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसके बैग्स में नाइट्रोजन की फ्लशिंग की जाती है. फ्लशिंग इसलिए की जाती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके नाइट्रोजन को इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन. रेफ्रिजरेशन के थ्रू कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन के थ्रू, यहाँ एफ लिख लेना बच्चों. स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, अगर लाइट से दूर रखोगे तो जितने भी ऑयली फूड आइटम होते हैं उसमें एक्चुअली ऑक्सीडेशन का जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि फूड आइटम हमारा कहीं ना कहीं रैंसिड होने से बच जाता है. तो कोरोजन एंड रैंसिडिटी, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस. इज इट क्लियर, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? सो आई होप द टर्म्स आर टोटल क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया. आप लोगों ने ये समझ लिया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, और उसके हमारे डे टू डे लाइफ में दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे, कोरोजन और रैंसिडिटी क्या है, इसको आपने समझ लिया. अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक से दिए जा रहे हैं उसको आप देखिए. ये 4, 5, 6 क्वेश्चंस आर देयर. उनको आपको सॉल्व करना है, लिखना है. वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखेंगे, फिर उसके आंसर्स को लिखेंगे. इफ़ यू आर एबल टू राइट द आंसर्स
of all these 6 questions, it means the aim of this session was fulfilled. तब हम समझेंगे कि ये जो हमारा सेशन था वो सक्सेसफुल रहा. Whatsoever the efforts were taken to teach you was successful. So my dear students, pause the video, write the questions in your notebook, and then write answer in your notebook. Is it clear to all of you? And now this chapter has been completed today through the 4 sessions taken by me through the videos, and I hope all the sessions were fruitful and you have got the concept of your first chapter so far taught by me. So thanks for watching the video. Please subscribe the channel, and here link is given for your self assessment test. Actually, dear children, I am just taking self assessment test through the Google Forms. The first the this is was the link, this is the link for the first टेस्ट सीरीज टेस्ट आई हैव गिवन. और आप इसको करें, टेस्ट को दें, और आप जब टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉन्सेप्ट था उसको आपने कितना समझा है. सो once again, thanks to all of you for your valuable time for watching these videos and for subscribing to my channel. So thank you once again. I will meet you soon with the videos of the next chapter, that is metal and non-metal. That is the third chapter from your NCERT book. So stay at your home,